Hello students. Today we are going to learn the statics in plural sense. In the previous lecture we have learned about the statics, and the static is used in two distinct senses, that is singular and plural sense. So today we are going to learn the statics in plural sense. Statics in plural sense means numerically fact systematic collected, means this is the data, means plural sense का मतलब क्या है, the data which we have collected and it is in numeric form. This is called statics in plural sense, or we can say it is an aggregate of facts affected to a market extent by multiplicity of cause, numerically expressed, enumerated or estimated according to a reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other. यानी कि स्टैटिक्स क्या है, जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और वो डेटा कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, अफेक्टेड होता है. जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है उसे एस्टिमेट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, या जो पर्सन है वो खुद कलेक्ट करता है. वहाँ हम एक्यूरेसी फॉलो करते हैं कि ताकि हमें सही डेटा मिल सके, और एक सिस्टमेटिक मैनर में हम उस डेटा को कलेक्ट करते हैं फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पस. पहले से गोल निर्धारित होता है कि हमें किसके बारे में डेटा कलेक्ट करना है. ठीक है. सो दिस इज अ स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स इन प्लूरल sense, because these are the characteristics of statics in plural sense. So the first one is statistics are aggregate of facts, just I have told to you, affected by multiplicity of causes, numerically expressed, reasonable standard of accuracy, collected in systematic manner, predetermined purpose and homogeneous in nature. So I am going to explain these points one by one. So the first one is statics are aggregate of facts. यानी कि स्टैटिक्स जो है वो एग्रीगेट है, यानी कि हम एक सिंगल न्यूमरिक वैल्यू को स्टैटिक्स नहीं कह सकते. इट इज़ एन एग्रीगेट. ठीक है, समेशन है न्यूमेरिकल फैक्ट्स का. अ सिंगल ऑब्जर्वेशन is not statics, as statics means numerically fact collected. fact मतलब डेटा. ठीक है, यानी कि जब हम बहुत सारे न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं तब वो स्टैटिक्स कहता है. जैसे टेबल नंबर 1 में आपको दिया है सब्जेक्ट एंड मार्क्स. ठीक है, हिंदी का 60 मार्क्स दिया हुआ है. तो अगर हम सिर्फ इस एक डेटा को अगर लेते हैं, दिस इज़ नॉट कॉल्ड स्टैटिक, ये स्टैटिक्स नहीं है. लेकिन अगर हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेते हैं देन वी कॉल इट एज स्टैटिक्स, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दीज मार्क्स वी आर एबल टू गेट द एवरेज, हाईएस्ट, लोएस्ट मार्क्स. ओके, तो अगर कोई एक न्यूमरिक डेटा है तो वो स्टैटिक्स नहीं है. दैट इज स्टैटिक इज नथिंग बट aggregate of numerical data. So just see one more example is there. Marks obtained by a student in Hindi in class 10, you just see here, will not constitute static, but his marks in all 5 subjects will reflect on his performance in class 10th. ठीक है, जैसा आपने इसमें देखा कि सिर्फ एक मार्क्स, एक सब्जेक्ट के मार्क्स के बेस पर आप उसकी परफॉर्मेंस नहीं बता सकते. लेकिन अगर उस आपके पास सारे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं देन यू विल एबल टू डिक्लेयर हिज परफॉर्मेंस, हिज पोजीशन इन द क्लास. सो statistics are aggregate of facts. The next one is statistics are affected to a marked extent by multiplicity of cause. Multiplicity of cause का मतलब होता है कि whatever the data we have collected, they are affected by different causes, different reasons. ठीक है, यानी कि जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो डिफरेंट रीजन्स उससे जुड़े होते हैं. जैसे
statistical data are affected to a great extent by number of factors affecting together. For example, statistic of a prices of TV, जैसे किसी भी टीवी का प्राइस जो है, सेट्स आर अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर. ठीक है, किसी भी सामान ले लीजिए, किसी भी वस्तु का अगर जो प्राइस होता है सिर्फ एक फैक्टर्स के कारण नहीं बढ़ता घटता. ठीक है, अब उसमें सप्लाई हो गई, डिमांड हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया. सो वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टैटिस्टिक, and it is very difficult to study separately the effect of each of these factor on price of TV sets. ठीक है, इसलिए इन सबको सेपरेटली स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो स्टैटिस्टिक इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉस्ट. द नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. हमने पहले भी पढ़ा कि स्टैटिक्स क्या है, दैट इज न्यूमेरिकल डेटा है. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटास, फैक्ट्स एंड फिगर्स. सो ऑल स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस. पहले हमको ध्यान रखना है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ नंबर होनी चाहिए. क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन लाइक गुड, बैड, बिग, स्मॉल एट्सेट्रा डू नॉट कंस्टिट्यूट स्टैटिस्टिक बिकॉज देयर इज नो न्यूमेरिकल फिगर्स आर देयर. ठीक है, अब यहाँ तो कोई हमारे पास न्यूमेरिकल गुड का कुछ नहीं है, बैड का नहीं है, बिग, स्मॉल कोई नंबर में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. सिमिलरली qualitative statements such as the production of wheat in India is rapidly increasing do not constitute statistic. अब यहाँ जैसे कह रहा है एक एग्जांपल कि भारत में जो है वीट का प्रोडक्शन, गेहूं का प्रोडक्शन जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये स्टैटिस्टिक नहीं है जब तक कि ये नंबर के फॉर्म में ना हो. अब मान लीजिए जैसे हमारे 10th क्लास में जो है सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक. अगर जब हम उनके नंबर्स के द्वारा उनको बताए कि इस बच्चे ने 90 पाया, इसने 80 पाया, इसने 70 पाया, देन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स वी आर एबल टू एक्सप्रेस. सो the statement will be called statistic only if numerical data are given or quantitative expression is statistic. नंबर के फॉर्म में होना चाहिए. जैसे production of wheat in India has increased by 20% between 2001 and 2011. अब यहाँ क्या आ गया, न्यूमरिक डेटा आ गया कि 2001 से 2011 के बीच में प्रोडक्शन जो है 20% बढ़ गया. सो ऑल द स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए, दिखना चाहिए. द नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स आर एन्यूमरेटेड और estimated according to a reasonable standard of accuracy. Means whatever the data we have collected, that should be collected very accurately. We are taking so much of accuracy while collecting the data. यानी कि जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करते हैं, उस समय हमें सतर्कता बरतनी चाहिए, हमें ध्यानपूर्वक उसे कलेक्ट करना चाहिए. स्टैटिकल डाटा मस्ट बी रीजनेबली एक्यूरेट बिकॉज स्टैटिकल डाटा आर कलेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट स्टैटिकल इंक्वायरी. क्योंकि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हमने पढ़ा था जैसे कि किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें स्टैटिक्स की ज़रूरत पड़ती है. हमने पढ़ा था जिसमें हमने इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक के रिलेशनशिप बताया गया था कि बिना स्टैटिस्टिक्स के किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है. तो अगर हम किसी भी डेटा को अगर ध्यानपूर्वक नहीं कलेक्ट करेंगे तो उससे इंक्वायरी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे. इफ़ द एरिया ऑफ आवर इंक्वायरी इज़ लिमिटेड देन वी यूज़ एन्यूमरेशन. यानी कि अगर छोटे एरिया के बारे में आपको कोई जांच पड़ताल करनी है तो हम एन्यूमरेशन मेथड यूज़ करते हैं. मतलब हम खुद जा कर के घूम करके पर्सनली डेटा कलेक्ट करते हैं. एंड इफ़ द स्कोप ऑफ इंक्वायरी इज़ वाइड देन वी विल कलेक्ट द डेटा बाय मेथड ऑफ एस्टिमेशन. और लेकिन अगर वास्ट एरिया, बड़ा एरिया है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू विजिट ईच एंड एवरी प्लेस. तब हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेशन, एक अंदाज़ा लगाते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं. अब मान लीजिए अगर जो हमने अंदाज़ा लगाया वो करेक्ट नहीं हुआ, हेंस द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी ऑब्जर्व. अगर अंदाज़ा हमारा सही नहीं निकला, हमने प्रेडिक्शन सही नहीं किया, तब क्या होगा, वह
गलती निकल सकती है और उसके चलते जो भी हम डिसीजन लेंगे वो गलत हो जाएगा। इसलिए जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, सतर्क रहें और ध्यानपूर्वक डेटा को कलेक्ट करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। अब डेटा को भी कलेक्ट करने का एक सिस्टम होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक नहीं, ये नहीं कि एक डेटा यहाँ से उठाया एक दूसरी जगह से उठाया, ठीक है, तो वो सिस्टम नहीं, क्योंकि अगर आप सिस्टमेटिक डेटा को नहीं कलेक्ट करेंगे तो उसे अरेंज करना और उसे एनालाइज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड सिस्टमेटिकली। Statistic not collected in systematic manner will lead to misleading conclusion. Definitely, if you are not arrange the data in a proper order, and then it is not possible to find out the conclusion. आपने 10th में पढ़ा होगा मीन, मीडियन, मोड। अब उसमें क्या होता है, अगर आप सीरीज़ को या डेटा को एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं अरेंज करते हैं तो क्या करते हैं होता है, आप आंसर नहीं निकाल पाते हैं, आप उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाते। दैट्स वाई the data must be arranged in a systematic manner. Next one is statistics are collected for a predetermined purpose. Means when we have going for collecting any data, our purpose must be clear कि हम जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो उसका पर्पस क्या है, हम किस लिए कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये डेटा किस चीज़ से रिलेटेड है, हमें किस काम के लिए कलेक्ट करना है। क्योंकि अगर हमारा पर्पस नहीं क्लियर होगा तो हम उस डेटा को प्रॉपरली कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा शुड बी डिसाइडेड इन एडवांस। डेटा कलेक्टेड विदाउट पर्पस विल बी मिसलीडिंग एंड विल नॉट सर्व द पर्पस ऑफ स्टैटिकल इंक्वायरी। डेफिनेटली अगर आप पर्पस ही हमको नहीं पता है कि हमें किस लिए डेटा कलेक्ट करना है, तो जो भी हम डेटा कलेक्ट करके लाएंगे वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। जो भी हमें स्टैटिकल इंक्वायरी करनी है, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो सॉल्व नहीं हो पाएगी, क्योंकि द डेटा आर नॉट रिलेटेड टू द स्टैटिकल इंक्वायरी। द नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। इसका मतलब ये होता है कि वट एवर द डेटा वी हैव कलेक्टेड दे मस्ट बी इन ह्यूमोजीनियस इन नेचर, सो वी आर मेक कंपेरेबल। यानी कि जो भी हम डेटा कलेक्ट करें वो एक जैसे होने चाहिए। अगर अलग अलग तरह के डेटा होंगे तो हम उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे, हम कोई भी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई होमोजीनियस इन नेचर, मतलब एक जैसे डेटा, एक ही तरह का डेटा होना चाहिए, पर्टिकुलर एक एरिया का डेटा एक जगह होना चाहिए, ताकि कोई भी कंक्लूजन हम आसानी से ड्रॉ कर सकें। फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन डेटा कलेक्टेड मस्ट बी होमोजीनियस। इट वुड बी मीनिंगलेस to compare the height of a student with their pocket allowances, but these data are not homogeneous। अब क्या है, मान लीजिए आप एक बच्चे के स्टूडेंट के हाइट से उसको जो पैसा खर्च करने के लिए हर महीने मिलता है उसको आप कंपेयर करें, यू आर एबल टू कंपेयर दिस? नो। अगर मान लीजिए 2 बच्चों की हाइट दी है देन यू आर एबल टू कंपेयर, 2 बच्चों की पॉकेट मनी दी है देन यू आर एबल टू कंपेयर। तो द डेटा विच वी हैव कलेक्टेड दैट मस्ट बी होमोजीनियस इन नेचर, so it is easy for us to make comparable. So if above discussion features are present, the data are known as statistic। यानी कि जब ये सारे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं डेटा में तभी हम उसे स्टैटिस्टिक कहते हैं। Thus all statistics, remember all statistics are numerical statement of facts, बट ऑल न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आर नॉट स्टैटिस्टिक। यानी कि जो स्टैटिस्टिक है वो सारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने न्यूमेरिकल फैक्ट्स हमें मिलते हैं न्यूमरिक फॉर्म में, जो भी नंबर हमें मिलते हैं वो सारे स्टैटिस्टिक हों, क्योंकि अगर ये फीचर्स उसमें प्रेजेंट नहीं है, भले वो न्यूमरिक फॉर्म में है, तो वो स्टैटिस्टिक की कैटेगरी में नहीं आता है। तो यू गो थ्रू these characteristics, that is statistics in plural sense. We have just learned the concept of statistics in plural sense. Now I am going to discuss with you the statistic in singular sense। ठीक है, plural sense क्या था, whatever the numerical data we have collected that is called स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस। ये आपको दिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो प्लूरल सेंस क्या हुआ, जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स वो हो गए स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, और सिंगुलर सेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे।
तो सिंगुलर सेंस क्या है, जो डेटा हम न्यूमरिक डेटा कलेक्ट करते हैं, उन डेटा को कलेक्ट करने के लिए वट एवर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स वी आर यूजिंग, what are the different types of methods we are using for comparison, for presenting, for interpretation of data, that is called statistic in singular sense. Statistic in singular sense has the following features. It is collection of data, organization of data, how to presentation of data, analysis and interpretation of data. These are the features of statistics in singular sense. I am explaining these features one by one. So you must clear first of all what is statistic in plural sense. Means all the numerical facts, aggregate of facts are called statistics in plural sense. And what is statistic in singular sense? It is the method of collecting data. ठीक है, डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, उसे कैसे प्रेजेंट करना है, उसे कैसे एनालाइज करना है, ठीक, ये कहलाता है स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस. सो अंडर दिस वन फर्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ डेटा. सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं. Collection of data pertaining to the investigation is the first step. Great care should be taken while collecting data as they are the basis of statistical analysis. It can be collected from primary and secondary sources which we'll learn in the next chapter. So सबसे पहला काम क्या करना है कि जब भी हम डेटा कलेक्ट करें तो वो उस टाइम हमें एक्यूरेसी ध्यान रखनी है. ठीक है, एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करना है जो अभी हमने प्लूरल सेंस में पढ़ा. ठीक, क्योंकि अगर हम गलत डेटा कलेक्ट करेंगे तो हमारी इंक्वायरी गलत हो जाएगी. वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रीज़न फॉर द इंक्वायरी. सेकेंड वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा. हम उसे कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे हम उसको रिकॉर्ड करके रखेंगे, कैसे उसे क्लासीफाई करेंगे. ठीक है, तो सेकेंडरी डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश सोर्स इज़ नॉर्मली ऑर्गेनाइज. मतलब अच्छा, जैसे एक पिछले में एक और था कलेक्शन में कि जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसे प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स से. प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है जब हम खुद जाके कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी सोर्स का मतलब होता है जब हम किसी दूसरे के द्वारा कलेक्ट किए गए फैक्ट्स, फिगर्स या न्यूमेरिकल डेटा को यूज़ करते हैं. उसे कलेक्ट कोई और करता है, हम उसे यूज़ करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में अगर सेकेंडरी डेटा है तो वो ऑलरेडी पहले से एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में होता है, एक सीक्वेंस में अरेंज करके किया हुआ होता है, बस यू हैव टू use. But the large number of facts and figures that are collected from a primary survey need to be organized. लेकिन जो प्राइमरी सर्वे है जिसमें आप खुद जा कर के डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उन डेटा को फर्स्ट वी हैव टू अरेंज इन ए प्रॉपर ऑर्डर. आपने टेलीमार्क्स पढ़ा है, ठीक है, जिसमें डेटा को अरेंज किया जाता है. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन्वॉल्व एडिटिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन. एक प्रॉपर फॉर्मेट में उसको एक टेबल के फॉर्मेट में क्लासीफाई किया जाता है. क्लासिफिकेशन मतलब सेम नेचर ऑफ डेटा को एक ग्रुप में डाला जाता है. तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट. देन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. अब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसे ऑर्गेनाइज कर दिया, अब हम उसे प्रेजेंट करेंगे ताकि लोग उसे आसानी से समझ सके वो. ठीक है, उसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं. हम टेबल्स का यूज़ करते हैं, ग्राफ का यूज़ करते हैं, डायग्राम का यूज़ करते हैं. आपने बार डायग्राम पढ़ा है, पाई डायग्राम पढ़ा है. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स यूज़ किए. व्हाट आर दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा. ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड वी आर एबल टू कंपेयर द डेटा. Data can be presented either by table, diagram or by graphs. Next one is analysis of data. Analysis of data का मतलब है कि जब हमने डेटा को प्रेजेंट कर दिया तो अब हम उसकी तह तक जाएंगे, उसको एनालाइज करेंगे, छानबीन करेंगे, और उसके लिए हम डिफरेंट न्यूमेरिकल मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं. जैसे आपने मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा, मोड पढ़ा. अब इसमें हम क्वार्टाइल पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे. ठीक है, देन रेंज पढ़ेंगे. इस तरीके से और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स को पढ़ेंगे. सो आफ्टर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा,
Next step is analysis of data. Simple mathematical techniques can be employed for this purpose. These methods include measures of central tendency. Can you tell me what is this measures of central tendency? Nothing but average. Measures of dispersion, correlation, regression, etc., which we are going to learn in the next few chapters. ठीक है, तो ये टेक्निक्स हैं जिसके बेस पर हम डेटा को एनालाइज करते हैं. नाउ द लास्ट वन इज इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है वट एवर द रिजल्ट वी हैव फाइंड आउट आफ्टर द एनालाइजिंग ऑफ डेटा वी हैव टू डिस्क्लोज, हम इसे बताएंगे. द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एनालिसिस, दैट इज अराइविंग एट कंक्लूजन. हमने क्या निष्कर्ष निकाला. Interpretation is difficult task and involve skill and experience. If data is not properly interpreted, then whole object of investigation is defeated. और ये बहुत important task है कि मान लीजिए हमने इतनी सारी मेहनत की और जब हमें उसका conclusion ही हम सही तरीके से नहीं निकाल पाए, निष्कर्ष नहीं निकाल पाए, तो हमारी पूरी इंक्वायरी जो है वो फेल हो सकती है. So these are the steps comes under the statistics इन सिंगुलर सेंस. ठीक है, तो ये है स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस. ओके, सो यू गो थ्रू बोथ statistics in plural sense and statistics in singular sense, and you have any problem you have to contact with me.